बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट सेगमेंट पढ़ने वाले हैं विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू सम प्रीवियस टर्मिनोलॉजीज विच आर एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर सिस्टमैटिक्स and today our topic is binding energy curve. Before we start the binding energy curve, once again I want to recall the previous terminologies associated with the nuclear systematics. First of all, mass defect, जो कि बच्चों डेल्टा m से हमने डिनोट किया था. पैकिंग फ्रैक्शन, that is mass defect per nucleon. Binding energy एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. बच्चों आपको बता चुके हैं कि व्हाट इज़ मास डिफेक्ट. इट हैज़ बिन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट मास ऑफ न्यूक्लियस विच इज़ कैपिटल M इज़ ऑलवेज स्लाइटली लेस दैन द सम ऑफ द masses of its nucleons, and this difference in mass is known as mass defect and it is denoted by delta M. Now what is packing fraction? It is mass defect per nucleon. Delta M is the total mass defect, but delta M over A is the contribution in mass defect by each nucleon, that is known as packing fraction. Binding energy, energy equivalence of mass defect is known as binding energy. या जब बच्चों न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियन आपस में जुड़ते हैं. कैसे जुड़ते हैं वो आपको बच्चों बता चुके हैं कि जब न्यूक्लियन न्यूक्लियर फोर्सेस की रेंज में आते हैं तो फिर न्यूक्लियस बिल्ड होता है और एनर्जी रिलीज होती है. This energy is known as binding energy, which is energy equivalence of mass defect and written as delta M into C square. Binding energy per nucleon. How much is the contribution in binding energy by a single nucleon? That is known as binding energy per nucleon. तो ये बच्चों तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व. एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक ग्राफ है जो हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर के दरमियान ड्रा करते हैं. सो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व? द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी कर्व. Once again, variation of binding energy per nucleon with mass number is called binding energy curve. कि बच्चों अगर हम क्या करें, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियाइयों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालें और मैस नंबर के साथ उनको ड्रा करें तो जो कर्व बनेगी, जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ को बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोलेंगे एंड दैट इज़ शोन हेयर. हम आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व दिखाने लगे. जी डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व which is the variation of binding energy per nucleon which is in unit of mega electron volt versus mass number. Starting from the origin, here is mass number 50, 100, 150, 200, 250, and binding energy per nucleon in millions of electron volt, mean in mega electron volt are 2 mega electron volt, 4 mega electron volt, 6, 8, 10 etc. बच्चों अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूटेरियम की कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन कि अगर हम ड्यूटेरियम विच इज़ 1H2, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन. तो अगर हम एक प्रोटॉन की मैस एक न्यूट्रॉन की मैस ऐड करें, उसमें से ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस की मैस सब्ट्रैक्ट करें, यू गेट मास डिफेक्ट. और अगर आप मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं इन यूनिफाइड मास स्केल in term of U, then you calculate the binding energy of the deuterium by just multiplying the mass defect with 931 point something mega electron volt, and you get the binding energy of deuterium, and binding energy of deuterium is about 2.2 mega electron volt. और अगर हम मास नंबर जो ड्यूटेरियम का 2 है उससे डिवाइड कर दें तो फिर ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो तकरीबन 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, विच इज़ इन बिटवीन 0 and 2. हेयर इज़ द प्लेस ऑफ ड्यूटेरियम इन binding energy curve. Now if we calculate the binding energy per nucleon of tritium in the same way by adding the masses of 1 proton, 2 neutron and subtracting the mass of the tritium, you get the mass defect of tritium. Then you calculate binding energy and binding energy per nucleon of tritium, you get the value in between 2 and 4 mega electron. So it means here is the place of tritium. Similarly, the binding energy of helium is 28
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर आप उसकी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करें तो चूँकि हीलियम में 4 न्यूक्लियन होते हैं तो 4 से डिवाइड करें, यू गेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम नियर अबाउट 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो हियर इज द प्लेस ऑफ द हीलियम. So same way, if you go on calculating the binding energy per nucleon of all the nuclei of all the atoms of element, then you get this whole curve, and that curve is known as the binding energy curve या variation of binding energy per nucleon with मास नंबर. अब अगर आप इस ग्राफ को एनालाइज करें तो हमें बच्चों नज़र आ रहा है कि शुरू में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज़ करती है टिल इट रीचेज टू मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ हेयर at the place of iron या isotopes of iron. So here is the binding energy is maximum, which is near to 9 mega electron volt. Actually it is 8.8 mega electron volt, correspond to the mass number 56, and it means the binding energy per nucleon of iron is the greatest. Now binding energy per nucleon is gradually decreasing with the increase of mass number, and it is about 7.6 mega electron volt when the mass number is reached to 238, which is the isotope of uranium. So it means हमें यह नज़र आ रहा है कि पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर के इंक्रीज़ करने के साथ इंक्रीज़ करती है, एक हाईएस्ट वैल्यू अटेन करती है, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज़ करती है, और इस कर्व को हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोलते हैं. अब बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या शो कर रही है, मैं आपको बच्चों रिजल्ट एनालिस्ट कर देता हूँ. द बाइंडिंग एनर्जी कर्व शोज दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट ज़रा देखें कि बाइंडिंग एनर्जी क्या शो कर रही है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस विद मास नंबर टिल इट रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट A इक्वल टू 56. देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस ग्रेजुअली to a value 7.6 mega electron volt at A 230. Binding energy per nucleon increases with mass number. पहले बढ़ती है till it reaches the maximum value 8.8 mega electron volt at mass number 56, which is iron. Then binding energy per nucleon decreases gradually to value 7.6 mega electron volt at mass number 238, mean isotope of the uranium. So this is the overall trend of the binding energy curve या binding energy per nucleon with mass number. Now the second result, number 2, dear student, here binding energy per nucleon is greatest for the iron 56 या iron 58, mean isotope of iron. Binding energy per nucleon is greatest for iron, that is iron is the most stable nucleus. वैसे भी बच्चों इन जनरल जब हम मटेरियल की हार्डनेस देखते हैं, मटेरियल की रिजिडिटी देखते हैं, मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो आयरन इज़ अ वेरी हार्ड मटेरियल. बट इट वाई इट इज़ हार्ड? जाहिर है बच्चों, आयरन इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियाई, एंड न्यूक्लियाई हैज़ the different binding energy. So most stable nucleus is the nucleus of iron, whose binding energy per nucleon is greatest, and it is about 8.8 mega electron volt per nucleon. अब बच्चों दो जो स्टेबिलिटी है, जो ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी का रीजन है, इट इज़ इन बिटवीन 50 एंड 80 मैस नंबर के. जब मैस नंबर 50 से 80 के इन बिटवीन हम देखते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटेस्ट है. नंबर 3, द रीजन ऑफ ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी इज फ्रॉम मास नंबर 52. जितने न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर बच्चों 50 और 80 के दरमियान है वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई हैं. जैसा कि मैं बोर्ड पे आपको दिखाता हूँ, इसको देखें ज़रा. हियर इज़ द रीजन ऑफ greatest stability. This is the region of greatest stability. This whole region which is starting from 50 to 80. This region is the region of greatest stability. So this is the binding energy curve या variation of binding energy per nucleon with mass. अब बच्चों इस binding energy
कर्व की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, या इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व को स्टडी करने के बाद हमें क्या एडवांटेजेस हुआ है। तो ज़रा देखें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व हाई मास नंबर के साथ भी ड्रूप कर रही है और लो मास नंबर की साइड पे भी ड्रूप कर रही है। ड्रूप का मतलब बेंड कर रही है, झुकी हुई है। इट मीन जो रीजन है ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी का, उससे ऑनवर्ड जो मास नंबर्स हैं उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम है और उससे पहले जो मास नंबर हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है। तो इट मीन्स ड्रूपिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व एट हाई एंड लो मास नंबर हैज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। और वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं? दो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जो हम इस चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे। एक को हम बोलेंगे न्यूक्लियर फिशन और दूसरे को न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फिशन का मतलब क्या है कि जब हम किसी बड़े न्यूक्लियस को, बड़ा न्यूक्लियस मीन जिसका मास नंबर ज़्यादा है, हम स्प्लिट करते हैं इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ इंटरमीडिएट साइजेस। अब जाहिर है बच्चों, यहाँ से ग्राफ से देखें तो हमें नज़र आ रहा है इसके मुकाबले में ये ज़्यादा स्टेबल है, इसके मुकाबले में ये ज़्यादा स्टेबल है, इसके मुकाबले में ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब है कि जब एक बड़ा न्यूक्लियस हम स्प्लिट करेंगे इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ इंटरमीडिएट मैसेस, वी विल अचीव मोर स्टेबिलिटी। इट मीन्स एनर्जी विल बी रिलीज्ड। दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज न्यूक्लियर फिशन, कि हम किसी भी बड़े न्यूक्लियस को सेपरेट करके हम स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं न्यूक्लियर सिस्टेमैटिक्स की। इट मीन्स हम एक्स्ट्रा या एक्सेस एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन। और दूसरी मैंने बताया बच्चों कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस तरफ भी क्या कर रही है, ड्रूप कर रही है, बेंड कर रही है। इसका मतलब यह है कि ये लाइटर न्यूक्लियाई हैं। जब लाइटर न्यूक्लियाई आपस में मर्ज होंगे और ज़रा बड़ा न्यूक्लियस मिलकर जब बनाएंगे तो वो बड़ा न्यूक्लियस इन लाइटर न्यूक्लियाइयों से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपको बच्चों पता है कि जब भी कोई सिस्टम स्टेबिलिटी अचीव करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो जब ये लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज होंगे इनटू लार्ज न्यूक्लियस, अब लार्ज का मतलब ये नहीं बच्चों कि ये मर्ज होंगे और वो बड़े बनेगा। हम कह रहे हैं कि जब ये लाइटर न्यूक्लियाई मिलते हैं, मसलन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलेंगे तो ज़ाहिर है हीलियम न्यूक्लियस बनेगा या उसके राउंड अबाउट उसे लिटिल ग्रेटर मैस वाले न्यूक्लियाई बनेंगे। तो हम इस रीजन की बात कर रहे हैं कि जब लाइटर न्यूक्लियाई मिलेंगे तो जो बड़ा न्यूक्लियस बनेगा इट विल बी मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इट मीन एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो इसका मतलब है लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं, एनर्जी देते हैं, और बड़ा न्यूक्लियस स्प्लिट होता है तो एनर्जी रिलीज करता है। बड़ा न्यूक्लियस जब स्प्लिट होता है इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ इंटरमीडिएट मैसेज, एनर्जी रिलीज, रिएक्शन इज नेम्ड एज न्यूक्लियर फिशन। और लाइटर न्यूक्लियाई जब फ्यूज होते हैं और लिटिल हैवियर न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, रिएक्शन इज नेम्ड एज न्यूक्लियर फिशन। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, नंबर 1 न्यूक्लियर फिशन, नंबर 2 न्यूक्लियर फ्यूजन। तो व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन? व्हेन हैवी न्यूक्लियस splits up into two nuclei of comparable masses which will be more stable, energy is released. Reaction is named as nuclear fission. And when lighter nuclei fuse together to form large size nucleus, energy is released. Reaction is named as nuclear fusion. So what is nuclear fission? Splitting of heavy nucleus, जो कि बच्चों less stable है, into two nuclei of comparable masses, जो कि more stable हैं इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व के मुताबिक। स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस जो लेस स्टेबल है इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ कंपेरेबल मैसेज जो मोर स्टेबल हैं, द एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस जो कि लेस स्टेबल है इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ कंपेरेबल मैसेज जो मोर स्टेबल हैं, एनर्जी इज रिलीज। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन एंड दिस concept is understand from here, which is the drooping of binding energy with high mass number. So here is the nuclear fission region. बाइंडिंग एनर्जी कर्व में ये जो रीजन है हम इसको न्यूक्लियर फिशन रीजन कहते हैं। जब भी यूरेनियम या रेडियम या इस किस्म का कोई न्यूक्लियस जो कि फिशनेबल होगा, हम ये नहीं कह रहे कि सारे ही हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट होंगे इस टेक्निक से और एनर्जी रिलीज होगी।
the only few nuclei या specific nuclei can undergo nuclear fission reaction and only those nuclei undergo fission reaction which are fission able. अब कौन से fission able हैं, कौन से यूज़ हो रहे हैं practically throughout the world, ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर जाकर हम इसको अंडरस्टैंड करें. Now here is the nuclear fusion when lighter nuclei combine, when lighter nuclei combine to form a single nucleus जो कि more stable है, the energy is obtained. This nuclear reaction is called nuclear fusion. When lighter nuclei combine to form single nucleus which is more stable, the energy is obtained. This nuclear reaction is called nuclear fusion. So these are the two practical importance या practical application of binding energy curve. So once again, binding energy per nucleon versus mass number, this is known as binding energy curve. और binding energy curve आपको सामने बोर्ड पे नज़र आ रही है. क्या शो कर रही है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज़ करती है मास नंबर के इंक्रीज़ करने से. इट रीचेज टू मैक्सिमम वैल्यू करस्पॉन्ड टू मास नंबर 56 एंड द वैल्यू हेयर इज़ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एंड देन इट ग्रेजुअली डिक्रीजेज टू 7.6 mega electron volt when mass number reaches to 238 corresponding to the uranium isotopes. It means that drooping of binding energy at high mass number and at low mass number has practical importance. And what are the practical importance of drooping of binding energy curve with a high mass number is the nuclear fission. And what is the practical importance of drooping of binding energy per nucleon toward low mass number is the nuclear fusion.